السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ آغاز کریں گے اس دعا سے، اے خالق دو جہاں، ہم پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ خون سفید ہو گیا، جنگ میں قتل کی لرزہ خیز واردات، معمولی تلخ کلامی پر بھائی نے بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سفاکیت کی انتہا، جنگ کے نواحی گاؤں پنڈ سلطانی میں قتل کی لرزہ خیز واردات پیش آئی۔ سگے بھائی نے معمولی تلخ کلامی پر بہن پر چھریوں کے وار کر کے جینے کا حق چھین لیا۔ واردات کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس موقع پر پہنچی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل جنڈ منتقل کیا گیا۔ مقتولہ سرکاری اسکول میں ٹیچر تھیں۔ پولیس مزید تفتیش میں مصروف ہے۔ دیپال پور میں مکان کی بوسیدہ چھت قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ ملبے تلے دبنے سے ایک بچی جاں بحق جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ دیپال پور کے نواحی گاؤں شیر نگر میں کچے مکان کی چھت اچانک گر گئی۔ ملبے تلے دبنے سے 11 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی جبکہ خواتین اور بچوں سمیت گھر کے 4 افراد شدید زخمی ہوئے، جنہیں مقامی افراد اور ریسکیو رضاکاروں نے زخمی حالت میں ملبہ ہٹا کر باہر نکالا اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ تیز رفتاری کا خوفناک انجام، مختلف ٹریفک حادثات میں 4 مسافر چل بسے۔ شاہ کوٹ میں خوفناک ٹریفک حادثے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ مامو کانجن میں 2 موٹر سائیکل رکشے کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق ہو گئی۔ پھول نگر میں بائی پاس کے قریب تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ گوجرا میں موٹر وے پر تیز رفتار کار الٹنے سے ایک نوجوان جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ ملتان میں وین اور اسکول رکشے میں تصادم ہوا، 3 طلبہ نہر میں جا گرے جنہیں زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ چوٹی زیری میں پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا، شہری 1 ماہ سے پانی جیسی نعمت سے محروم ہے۔ ٹینکر مافیا کی چاندی ہو گئی، شہری مہنگے داموں پینے کا پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ طاہر حسین رپورٹ کریں گے۔ چوٹی زرین شہر کی 1 ماہ سے واٹر سپلائی بند ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی سے 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی واٹر سپلائی چالو نہ ہو سکی۔ واٹر سپلائی بند ہونے سے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہر کا زیر زمین پانی کڑوا ہونے سے شہری مہنگے داموں پینے کا پانی خریدنے پر مجبور ہے۔ واٹر سپلائی اسکیم کی بندش کے بعد شہری شدید پریشانی کا شکار ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ واٹر سپلائی اسکیم کی مشینری 1 ماہ سے خراب ہے مگر انتظامیہ کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے، پانی جو ہے وہ نہیں آ رہا، علاقے والے کافی پریشان ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا پانی کے حصول کے لیے ٹینکر مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے چوٹی زرین شہر کی بند واٹر سپلائی اسکیم کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کو صاف پانی میسر ہو سکے۔ کیمرہ مین محمد حسین کے ساتھ طاہر حسین لنگا، سچ نیوز، چوٹی زرین۔ جنگ میں گیس کی بندش اور گیس پریشر کی کمی کے خلاف شہری سراپا احتجاج ہے۔ غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے حافظ محمد شفیق۔ جنڈ شہر میں محکمہ سوئی گیس کی جانب سے ظالمانہ لوڈ شیڈنگ اور گیس کے کم پریشر پر عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ ریلی نکالی اور کہا کہ بے وقت کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ سے بیماروں، طلبہ اور آفس ورکر کو شدید تکلیف کا سامنا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو گیس کی بندش ہے اور پرماننٹ بندش ہے، صبح کھانے پکانے کے ٹائم پہ دن کو اور رات کو یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ گیس مقامی پیداوار ہونے اور ریئلٹی کا حق رکھنے کے باوجود جنڈ شہر کے شہری اس سہولت سے محروم ہیں۔ ارباب اختیار صبح، دوپہر اور شام کے کھانے کے وقت گیس کی مکمل فراہمی کو یقینی بنائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ محمد شفیق، جنڈ اٹک۔ مسافر خانہ میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا، تعفن پھیلنے سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آصف امین کی رپورٹ۔ مسافر خانہ کے تاریخی شہر سما سٹا میں کلین اینڈ گرین مہم کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ سیوریج کا گندا پانی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگا، جس سے نہ صرف بدبو بلکہ مختلف بیماریاں بھی پھیلنے لگی۔ مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا، جس کی وجہ سے مقامی رہائشیوں کا جینا حیران ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کی وجہ تو سارے کول پانی خراب ہے، نہ پیون جائے نہ کوئی سے، ساری بدبوئیں گزرنے پہ ہیں، کیا کریں، غریب لوگ ہیں۔
केड़े पासे वही इंतजामिया की सुस्ती, नाअहली और नाकिस कारकर्दगी की बदौलत न सिर्फ मकामी रिहायशी बल्कि राहगीरों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरों की म्यूनसिपल कमेटी और जिला इंतजामिया से अपील है कि सीवरेज के इस निजाम को बेहतर बनाए ताकि शहरी इस गंदे पानी से पैदा होने वाली बदबू और मुख्तलिफ बीमारियों से बच सके और सुकून का सांस ले सके। कैमरामैन टीम के साथ आसिफ अमीन खरल, सच टीवी, मुसाफिर खान। डहरकी में तनख्वाहें ऑनलाइन न करने पर सैनिटरी वर्कर्स की काम छोड़ हड़ताल जारी है। सफाई न होने के बाद शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराह सीवरेज के पानी की जद में आ गई। हड़ताल से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। डहरकी शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। हर जगह पानी ही पानी है, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी खड़ा होने से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा भी पैदा हो गया है। चित्राल में क्रशिंग प्लांट की बंदिश से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए और तामीराती काम भी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। मजदूरों ने क्रशिंग प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया है। गुलामात फारूकी की रिपोर्ट देखिए। हाल में कानूनी तौर पर काम करने वाले क्रश प्लांट्स गुज़िश्ता एक माह से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ बीसियों मजदूर बेरोजगार हुए हैं बल्कि सरकारी और गैर सरकारी तामीराती काम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। क्रश प्लांट्स के मालिकान का कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए अदा करके कानूनी तौर पर लीज हासिल किया है और माहौलियात और महकमा मदनियात के हुक्म पर अपनी प्लांटों को आबादी से दूर मुंतकिल किया। इससे हमें काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि फिर इससे ये मसला होता है कि इलीगल माइनिंग होती है यहाँ पे ना। लोगों को बहुत तकलीफ है। ये ड्राइवर मजदूर लोग या ऑपरेटर क्या करेगा, इधर से कमाई करके अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क इधर कमाते हैं। इन क्रश प्लांटों में मुल्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मजदूर भी बेरोजगार हुए हैं। अगर ये क्रश प्लांट बंद होंगे तो साफ ज़ाहिर है हमारा चूल्हा भी बंद होगा। इस पे मजदूरी करने के लिए भी हम पंजाब से इधर आए हुए हैं। यहाँ काम करने वाले मुकामी मजदूरों का कहना है कि सैलाब की वजह से हर साल दरिया का सतह बुलंद हो जाता है और हुकूमत उसकी खुदाई और उबर सफाई पर करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। यही काम हम मुफ्त कर रहे हैं, मगर फिर भी हमें उसकी इजाजत नहीं मिलती। गुलामत फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। कनकोट में बल्दिया मुलाजमीन ने अनोखा एहतजाज शुरू किया। मुलाजमीन ने हाथों में झाड़ू उठाकर रैली निकाली। रैली में मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर आला सिंध ने अहकाम जारी किए कि मुलाजमीन की तनख्वाहें 25,000 की जाएँ, मगर उन पर अमल नहीं किया जा रहा। हमारे मुतालिबात तस्लीम करके हमें हमारा हक दिया जाए। ईसा खेल में खाद नायाब हो गई, किसानों की मुश्किलात बढ़ गईं। ईसा खेल के नवाही इलाके कमर मुशानी में किसान बिरादरी सरापा एहतजाज है। एहतजाज के बायस मियाँ वाली रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इन बिरादरी ने डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली और असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। गंदम की फसल और खाद न मिलने की वजह से ख़राब होने लगी है। ढडियाल में सर्दियों की सौगात, ड्राई फ्रूट की मांग में कमी आ गई। ड्राई फ्रूट की बढ़ती कीमतों के बायस खरीदारों ने दुकानों का रुख करना ही छोड़ दिया है। हर चीज़ गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। आसिफ अली की रिपोर्ट। सर्दियों में खाए जाने वाला ड्राई फ्रूट जिसकी मांग में सर्दी होते ही इजाफा हो जाता, मगर महंगाई की वजह से 2021 इसके लिए भी इंतहाई बुरा साबित हो रहा है। ढडियाल में ड्राई फ्रूट महंगा होने की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। दुकानदारों के मुताबिक जब तक बारिश नहीं होगा ड्राई फ्रूट का काम नहीं चलेगा। जब बारिश होएगा तो इसका डिमांड ज्यादा होगा, फिर काम भी चलेगा। अब मौसम खुश्क है तो डिमांड इसका है ही नहीं ड्राई फ्रूट। सर्दियों में खास तौर पर पसंद किए जाने और शौक से खाने वाला ड्राई फ्रूट जिसकी कीमतें पिछले साल की निस्बत 2 गुना हो चुकी हैं, अवाम इसे खाने से कासिर हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके अशियाए खुर्दोनोश और सर्दियों की इस खास सौगात को सस्ता किया जाए। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज़, ढडियाल। डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा में मुल्क की तारीख में पहली बार कैदियों की तफरीह के लिए पेंटिंग्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में हर किस्म के फनपारे रखे गए। नुमाइश में मुल्क भर के जामियात के शोबा फाइन आर्ट से फनपारे मंगवा कर नुमाइश के लिए पेश किए गए। कैदी हुकूमत के इस अनोखे इक़दाम पर इंतहाई खुश दिखाई दिए। नुमाइश में तलबा और तालिबात की तरफ से बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स और इस्लामी कैलीग्राफी के फनपारे कैदियों की तफरीह और तबाह के लिए पेश किए गए। नुमाइश के मौके पर DIG जेल खानाजात फैसलाबाद रीजन ने कैदियों के लिए खत्ताती और पेंटिंग्स की तरबियत के लिए क्लासेस शुरू करने का ऐलान भी किया।
सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के हवाले से चकवाल में मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। राजा साकिब रिपोर्ट करेंगे। चकवाल में मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें चकवाल, रावलपिंडी, गुजरखान, जेलम और सुहावा के बच्चों ने शिरकत की। इस ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तान ब्रांच चीफ अब्दुल ज़हूर हाशमी ने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, जिसका मकसद अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरों की भी मदद करना है। जबकि ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों ने भी ट्रेनिंग कैंप के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। इस टाइम के ऊपर किसी जगह कैंप की ट्रेनिंग सेशन रखना, सेमिनार करवाना या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लॉन्च करना, उसको सपोर्ट करना, ये एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस ट्रेनिंग कैंप में बच्चों को काता, स्टिक, तलवारबाजी व दीगर सेल्फ डिफेंस की हवाले से ट्रेनिंग के मास्टर शहबाज, मुबीन शाह, मोहम्मद कासिम, अरसलान, रिजवान निसार और शेख जुल्फिकार ने भी बच्चों को ट्रेनिंग दी। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। सांगला हिल में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। बच्चों को पोलियो के कतरे के साथ साथ विटामिन ए के कैप्सूल भी पिलाए जाएंगे। नदीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मुहिम में तहसील सांगला के 11 यूनियन काउंसिलों में 38,463 बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन ए के कैप्सूल पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के हवाले से बात करते हुए DDHO डॉक्टर नवीद मजहर ने बात करते हुए कहा कि 38,463 बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन ए के कैप्सूल पिलाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर भट्ट, सच न्यूज़, सांगला हिल। बडग्राम में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। पोलियो टीम्स बच्चों को घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। नसीम सवाती की तफसीलात। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह ज़िला बडग्राम में भी पोलियो की 5 रोज़ा मुहिम 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जारी रही। मुहिम की कामयाबी के लिए महकमा सेहत की जानिब से 458 टीमें तश्कील दी गई थी, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के सैकड़ों वर्करों ने 89,229 5 साल से कम उम्र बच्चों को घर घर जाकर पोलियो से हिफाजती कतरे पिलाए। इस मौके पर बडग्राम पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। पोलियो मुहिम के हवाले से पीरजई मलकाल के मिशर फयाज मोहम्मद जमाल खान और दीगर मशरान ने अवाम के नाम अपने पैगाम में कहा कि पोलियो सिर्फ एक बीमारी ही नहीं बल्कि उम्र भर की माजूरी है और इससे सिर्फ एक खानदान या एक बच्चा मुतासिर नहीं होता बल्कि पूरा मुआशरा इससे मुतासिर होता है। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वो घर घर आने वाले पोलियो टीमों के साथ ताउन करे और अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को बरवकत पोलियो के कतरे पिलाकर इस मौजी मर्ज से निजात पाए। इसलिए हम सबको अपने गांव, इलाके और पूरे पाकिस्तान को इस मुहलिक मर्ज से पाक करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ नसीम स्वाति, सच टीवी, बडग्राम। झेलम कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम महफिल मुशायरा और किताब मेले का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मारूफ शायर अनवर मसूद थे और खातून शायरा यास्मीन मलिक समेत मुल्क के नामवर शोरा कराम ने शिरकत की। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। जेहलम में कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम गन गार्डन में महफिल मुशायरा और किताब मेले का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के मारूफ शायर अनवर मसूद समेत समाजी सियासी शख्सियात, खवातीन, बच्चों और मर्दों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तंज़ो मज़ाह से भरपूर शायरी अनवर मसूद का खासा है। उन्होंने अपनी तंज़ो मज़ाह की शायरी से मुशायरे के शुरका को खूब महसूस किया और दाद वसूल की। मुशायरे के शुरका ने इस अदबी महफिल में सर्द मौसम में भी महफिल मुशायरा को खूब जमाए रखा। जेहलम की आवाम ने किताब मेला को भी खूब सराहा। कैमरा मैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। जराइम पेशा नासिर बेलगाम हो गए। चौक सरवर शहीद में चोर वाटर सप्लाई स्कीम का ट्रांसफार्मर ही ले उड़े। पानी की किल्लत से शहरी परेशान है। चौक सरवर शहीद में चोरी की अनोखी वारदात हुई। चोर वाटर सप्लाई स्कीम का ट्रांसफार्मर चोरी करके रफू चक्कर हो गए। बिजली का कनेक्शन मुनक़ता होने के सबब पानी की सप्लाई मुअत्तल है। सिंध में कच्चे के डाकुओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए SSP अमजद शेख के लिए कच्चे में अमन अमान कायम करना चैलेंज से कम न था। बेहतरीन हिकमत अमली के तहत पुलिस के जवानों ने कच्चे में पुलिस की रेड को कायम किया। अब्दुल्ला बरोही की रिपोर्ट। जिला कश्मीर गुज़श्ता कई सालों से डाकुओं और रहजनों का गढ़ माना जाता था। अगवा बराए तावान, डकैती, लूट मार रोज के मामूल बन चुके थे, मगर SSP अमजद शेख के तैनात होने के बाद जिला कश्मीर में डाकुओं का जीना अजीरन बन गया। हर वक्त पुलिस की ऑपरेशन कच्चे के इलाके में कामयाबी हुई। SSP अमजद शेख का कहना है कि ये कामयाबी में इसलिए भी कहूँगा क्योंकि ये जो कंदकोट ब्रिज बन रहा था उसमें काफ़ी इसकी थ्रेटनिंग कॉल आती थी और ये एरिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ में उसमें बड़ा हिक्कत था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा एरिया जो है, जो घोटकी कंदकोट ब्रिज का हो या जिस चाचड़ एरिया में जिसमें रह रहे हैं, वो काफ़ी सेफ हो गया। एसएसपी अमजद शेख का कहना है कि हमने हर वक्त डाकुओं का डटकर मुकाबला किया है और हमें हर वक्त कामयाबी हासिल हुई है। हमारा ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक जराइम पेश अफराद का खात्मा नहीं होगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदकोट। कोट अद्दू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके 27 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली हैं। इसहाक काज़मी रिपोर्ट करेंगे। कोट अद्दू थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार, 27 अदद चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 8 मुलजमान गिरफ्तार हुए। थाना सिटी की हदूद में मोटरसाइकिल चोर गैंग वारदातें करते थे। 27 अदद मोटरसाइकिलें और रक्षा मालकान को वापस कर दिए। गिरफ्तार चोर गैंग जुडिशनल हो गया। मजीद कार्रवाई जारी है। ये कोट अद्दू पुलिस के लिए आज ऑनर की बात है कि रिकवरी हो गई है 27 मोटरसाइकिल्स की। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि मैं 3 साल से देख रहा हूँ कि मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि पुलिस को सपोर्ट करने के लिए अवाम की और सियासतदानों की ज़रूरत ज़रूर होती है। शहरियों ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की और शहर से जराइम के खात्मे में पुलिस के किरदार को सराहा है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोट अद्दू। कोट राधा किशन में डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। 2 डाकुओं ने दिन दहाड़े ताजिर को ही लूट लिया। कोट राधा किशन में डाकुओं का राज कायम है। डाकू ताजिर से 5 लाख रुपए नकद रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। आए दिन की डकैतियों ने शहरियों का जीना मुहाल करके रख दिया है। लोअर दीर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें बिजली सारिफीन के मसाइल सुने गए और उनके हल की यकीन दहानी करवाई गई। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। एक्सियन वाबडा लोअर दीर मकसूद अहमद खान ने बिजली सार्फियों की मसाइल और मुश्किलात जानने और उसे हल करने के लिए तिमरगारा रेस्ट हाउस में कुली कचहरी का इनेकाद किया। सार्फिन ने कुली कचहरी में मसाइल का अंबार लगा दी। कुली कचहरी में वाबडा तिमरगारा 1 के SDO करीमुल्लाह खान और सब डिवीजन 2 के SDO अजमल खान, चेयरमैन हजरत फकीर खान और दीगर अहलकार भी मौजूद थे। बुनियादी मकसद यही था कि हम लोगों के मसाइल इनकी दहलीज पर उसको हल करें और बजाय 2-3 दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय इधर ही हम सारे इनके के लिए हाजिर हुए कि इधर ही बैठ के इनके हम मसाइल हल करें। इस मौके पर शुरका ने बिजली की बोसीदा तारों, गैर एलानिया लोड शेडिंग, मीटर रीडर की कमी में टैक्स उसूल और दीगर मसाइल का अंबार लगा दी। इस मौके पर एक्सियन वाबडा मकसूद अहमद खान ने सार्फिनों के मसाइल गौर से सुने और बाज़ मसाइल को मौके पर हल करने के अहकामात जारी कर दी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। मुनशियात फरोशों की शामत आ गई। हाफिजाबाद में पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पुलिस ने 20 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। जवार जफर इकबाल की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस राव सरदार अली खान की हिदायत पर हाफिजाबाद पुलिस का समाजी दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। DPO हाफिजाबाद बिलाल जफर की क़यादत में हाफिजाबाद पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 बदनामे जमाना मुनशियात फरोश समेत 20 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 4.5 किलो से ज्यादा चर्च, 50 लीटर शराब, 3 राइफलें और 4 पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में मुनशियात फरोश और नजायज रखने वालों के खिलाफ अलग अलग मुकदमात का अंदराज करके मजीद तफ्तीश जारी है। अरसा दराज से मतलूब एक कैटेगरी के 2 इख्तियारी मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए। DPO हाफिजाबाद की जानब से अच्छी कारकर्दगी मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान को शाबाश और समाजी दुश्मन और जराइम पेशा अनासर के हर सूरत एफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। गलियात नथिया गली, दीर बाला, मानसेरा और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यकबस्ता मौसम, आसमान से रुई की तरह गिरते हुए बर्फ के गालों ने हर मंजर चांदी में नहला दिया। चिन्योट में लकड़ी की मदद से बनाया गया उमर हयात महल फन तामीर में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। यही वजह है दुनिया भर से सयाह उसे देखने के लिए चिन्योट का रुख करते हैं। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट।
चिन्योट में तर्ज तमीर का शाहकार उमर हयात महल फन तमीर में अपनी पहचान रखता है। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होने की वजह से इसे चिन्योट का ताज महल भी कहा जाता है। ये तारीखी शाहकार उमर हयात महल 5 मनाजिल पर मुश्तमिल था, ताहम मुनासिब देखभाल न होने के बैस इसकी 2 मंजिलें तकरीबन 1 दहाई कबल गिर गई थी। लाखों रुपए की लागत से बनाया जाने वाले उमर हयात महल अलमारूफ गुलजार मंजिल चिन्योट की पहचान है। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह नज़र आई और हम चाहते हैं आप भी यहाँ विज़िट करें। शेख उमर हयात चिन्योट के एक मशहूर ताजर थे जिनका आबाई शहर चिन्योट था। हमारी डिप्टी कमिश्नर इस मामले में काविश कर रहे हैं कि तीसरी और दूसरी मंजिल को बचाया जाए, इसकी पहचान और ताकि सेहत को फ़रोग़ दिया जाए। उमर हयात महल में जहां एक तरफ सयाह अपनी सेल्फियां मोबाइल में महफूज करते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भर से फनकार इस तारीखी अहमियत के हामिल उमर हयात महल में अपनी फनकारी के जोर दिखाते नजर आते हैं। मुल्क भर से आने वाले सयाहों ने हुकूमत वक्त और मुकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस अजीम और तारीखी वर्सा को महफूज बनाया जाए। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज़, चिन्योट। सर्दियां आते ही हर जानिब सरसों के लहलहाते खेतों में पीले पीले फूलों ने बसेरा कर लिया। सरसों एक मुनाफा बख्श फसल है जिससे हासिल शुदा तेल मुख्तलिफ अनवा के खानों में इस्तेमाल होता है। राना इलियास खान रिपोर्ट करेंगे। छांगा मांगा में सरसों की फसल की काश्त वसी एकड़ रकबा पर की जाती है, क्योंकि सरसों की फसल मुनाफा बख्श कारोबार में शुमार होती है। इस फसल की तैयारी पर जहां किसान खुशी का इजहार करते नजर आते हैं, वहीं पर महंगाई की वजह से खासे परेशान भी दिखाई देते हैं। सरसों की फसल काश्त की है, इसके बड़े फायदे हैं। हम इससे तेल भी निकलवाते हैं, इसे बाजार में भी जाकर फरोख्त करते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत से फायदे हैं, लेकिन इस बार खाद की महंगाई की वजह से हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान खुर्दनी तेल का 1/3 हिस्सा खुद पैदा करता है, जबकि 2/3 हिस्सा खतीर ज़रे मुबादला खर्च करके बाहर से मंगवाता है। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज़, छांगा मांगा। सर्दी का मौसम आते ही मानावाला में देसी गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। मौसम सरमा की ये सौगात गन्ने के रस से तैयार की जाती है, जो सर्दी की शिद्दत में कमी के साथ साथ सेहत के लिए मुफीद है। मियाँ शेर की रिपोर्ट। सर्दी का मौसम आते ही मानावाला और गिरदनवा में देसी गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। सर्दी की ये सौगात गन्ने के रस से तैयार की जाती है, जो सर्दी की शिद्दत में कमी के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। गुड़ बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि हम अरसा 20 साल से ये काम कर रहे हैं और देसी गुड़ खरीदने के लिए शहरी मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। कारीगर और खरीदारों का कहना है कि देसी गुड़ हम खुद भी खाते हैं और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। तभी माहिरीन का कहना है कि सर्दियों की ये सौगात न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में कमी करती है, बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी देसी गुड़ बहुत मुफीद है। मियाँ शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो डैरकी के शहरियों ने सर्दियों की खास सौगात गर्मा गर्म चिकन सूप पीने के लिए सूप स्टॉल्स का रुख कर लिया। अब्दुल गफार रिपोर्ट करेंगे। जहां दिसंबर की सर्दी अरूज पर है, तो डेरकी के शहरियों ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए गर्मा गर्म सूप के स्टॉल का रुख कर लिया है। चिकन कार्न सूप अंडे, चिकन, काली मिर्च, रेड चिली, सिरका और गरम मसाला जात से तैयार पेशावरी चिकन सूप जायकेदार होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत को भी कम करता है। चिकन सूप सर्दियों की खास सौगात है। यहाँ पर सूप पीने आते हैं और सूप यहाँ पर बहुत सस्ता भी मिलता है और बेहतरीन सूप भी है और माशाल्लाह मज़ेदार सूप है। बाप उड़ाता हुआ गर्मा गर्म चिकन सूप जायकेदार होने के साथ साथ जिस्म में तवानाई पैदा करने के साथ सर्दी की शिद्दत को भी कम करता है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेहर की। मौसम सरमा का आगाज होते ही मंडी बहाउद्दीन के शहरियों ने मछली स्टॉल्स का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं मौसम सरमा में मछली खाने का शौक बाजारों का रुख करने पर मजबूर करता है। इरफान वड़ाइच की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन से तकरीबन 8 किलोमीटर शहर से दूर अठारडी रसूल बैराज के मकाम पर सर्दी के मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए झेलम, गुजरात और दीगर दूर दराज इलाकों से मछली खाने और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इंजॉय करने आते हैं। दरिया से निकलने वाली मछली जायका में अपना इम्तजाज रखती है। सर्दियों के आते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया है। सर्द हवाएं चलने लगी हैं तो मछली की डिमांड भी बढ़ने लगी। दरिया झेलम की ताज़ा और जायकेदार मछली खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मौसम की करवट बदलने पर मछली फरोशों की जैसे चांदी हो गई है। 12 मसालों से तैयार शुदा गर्मा गर्म मछली पुदीना इमली की चटनी केचप से खाएं तो हाथ ना रोक पाए। सुबह रसूल बैराज के इस पुरफजा मकाम पर दरिया से निकली मछली का नहर किनारे बैठकर खाने का मजा है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। रोड़ी में यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट में 8 टीम्स ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे कामरान अली।
روڑی میں حکومت سندھ کی جانب سے بنائے گئے گراؤنڈ میں یوتھ فیسٹیول ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فٹ بال کا کھیل پورے جسم کی صحت پر مثبت اثرات ڈالتا ہے۔ گورنمنٹ آف سندھ کی اسپورٹ اینڈ یوتھ افیئر کی جانب سے جو ہے کولیبریشن کے تحت یہ ہم کروا رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کا جو ہمیشہ رول بھی رہا ہے کہ یوتھ کو وہ جو ہے پروموٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے منسٹر صاحب لوکل گورنمنٹ سے ناصر حسین شاہ صاحب کی توجہ اور دلچسپی کی وجہ سے یہ آج ہمیں یہ گراؤنڈ ملا ہے۔ چھوٹے شہروں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا فروغ دینا قابل ستائش عمل ہے۔ کیمرہ مین اشفاق کھوسو کے ساتھ کامران علی، سچ نیوز، روڑی۔ بکر کے نجی اسکول میں سالانہ اسپورٹس گالا کا انعقاد ہوا۔ طالبات نے بڑھ چڑھ کر کھیلوں میں حصہ لیا۔ اسپورٹس گالا میں رسہ کشی، بیڈمنٹن سمیت دیگر مقابلے کروائے گئے۔ ناصر عباس بلوچ کی رپورٹ۔ بھکر کے نجی اسکول میں سالانہ اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر ان مقابلوں میں حصہ لیا۔ سالانہ اسپورٹس گالا میں رسہ کشی، میراتھن ریس اور بیڈمنٹن سمیت دیگر مقابلے کروائے گئے، جبکہ اس سے قبل بچوں نے ملی نغموں پر خوبصورت ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ اس موقع پر بچوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ثناء اللہ خان نیازی اور ڈاکٹر مظہر بلوچ نے کہا، کہتے ہیں جی کہ ہیلدی مائنڈ از ان ہیلدی باڈی۔ اگر آپ کی باڈی ہیلدی ہوگی تو اس کے اندر برین بھی ہیلدی ہوگا، اور ہیلدی باڈی کے لیے سپورٹس بہت ضروری ہے۔ اسکول کے طلبہ و طالبات نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایک ایسے ادارے میں پڑھتے ہیں جہاں معیاری تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی، تفریحی اور تخلیقی سرگرمیوں کے لیے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے فروغ کے لیے والدین اور اساتذہ دونوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ نوجوان نسل پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہو۔ کیمرہ مین سمیلا شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی بھکر۔ برجستہ کلام، سادہ زبان اور اچھوتا مزاج، اردو ادب اور شاعری کا بڑا نام جان ایلیا کے مداح آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ جان ایلیا اپنے منفرد انداز اور رومانوی غزلوں کی وجہ سے آج بھی مداحوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی سال ہا سال اور ایک لمحہ، کوئی بھی تو نہ ان میں بلایا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکلا۔ کس لیے دیکھتے ہو آئینہ خود سے بھی خوبصورت ہو، بہت اچھے، کس لیے دیکھتے ہو آئینہ تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو، داستاں ختم ہونے والی ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو، داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت۔ دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا، کیوں نہ چہروں پر اب وہ رنگ کھلیں، دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا، کیوں نہ چہروں پر اب وہ رنگ کھلیں، اب تو خالی ہے روح جذبوں سے، اب تو خالی ہے روح جذبوں سے، اب بھی کیا ہم تپاک سے نہ ملیں۔ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی۔ علاقہ خبرنامے سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔